It's around 9 p.m. We will start now, and today we have Yogesh sir, who will be taking in detail syllabus and related aspects of UPSC. Presently UPSC. Later on we'll cover MPSC, SSC, and in case go ahead with the CET and all. But temporarily we will concentrate because it is covering all the domains of competitive exam available in India, specifically CSC, that is Civil Service Examinations. So considering that aspect, now Yogesh sir will take charge and he will continue for next 55 minutes around. So you will get to know the exact details. After that, we will have one session from him on geography or history in case time permits or for the next time. Then just to update you on the first 5 sessions, next session will be probably on the CSAT, that is logical reasoning, mathematical ability, mental ability, and maybe 2 sessions and then one session on basic English, which is required for the all qualification level of the mains as well as the prelims. So considering this main chunk of 5 so that you get the feel of exactly what we will be covering in due course of time, considering approximately 300-400 hours per annum. So this continues for the next 2 to 6 years, depending on the student who has entered in this particular classes and his present educational qualification or standard in which he is studying. So now I'll not waste much time. Today we have 15 students approximately. I have one small request for you that next time onwards, already 2 classes will be over. So we will have your Gmail registration and that Gmail will be put directly into the link so that you need not ask for the entry permission during these sessions. So we will try that for the next time. Instructions will be issued to you in after end of today's session or maybe tomorrow morning. So please continue with today's session. We will generate one feedback form maybe tomorrow or day after tomorrow. So you can put how's it, and then we can go ahead with the conclusion of the next 3 sessions. Probably after 5 sessions, we will be at some level where you can make opinion about us and we can make some go ahead as far as this class, online class of the CSE competitive exams is concerned. Okay, Yogesh sir, please continue. I'll stop here. Thank you, everybody. Sir, please continue. Okay, thank you, sir. Good evening, everybody. My name is Yogesh. So please let me know that I'm clearly audible to you or not. In chat box, please let me know. Okay. Presentation. Can you see this presentation on your screen? Okay, visible. So let's start. So in today's session, what we are going to study about or what we are going to discuss about is the detailed explanation of UPSC syllabus. Okay, so this will be our major aim in this today's lecture. Okay, and apart from that, we will also discuss about the how to approach this exam. Okay, and how to study, then how to make notes. Okay, so this topic we will cover in this lecture. Okay, so previously in previous lecture, I think sir have uh, covered some short introduction and short discussion about the syllabus pattern, right, or exam pattern. तो पिछले लेक्चर में सर ने आपके साथ डिस्कस किया है ये कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और यूपीएससी के कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक क्विकली उसका रिव्यू लेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, उसका पैटर्न क्या रहता है. ठीक है, और उसके बाद में हम वन बाय वन एवरी स्टेज को एनालाइज करेंगे. एवरी स्टेज के लिए क्या प्रोसेस होता है और सबसे मेन उसका सिलेबस क्या होता है, उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली उसका सिलेबस में एक्सप्लेन करूंगा और उस सब्जेक्ट को कैसे हमको अप्रोच करना है, उसका स्टडी कैसे करना है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू,
Please, all of you, can you write your educational qualification in chat box so that I can understand what kind of audience I am addressing to. आप अपना क्वालिफिकेशन चैट बॉक्स में लिखिए सो दैट मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट है जो सुनने वाले हैं वो मुझे सुन रहे हैं. ठीक है. ओके. सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपने सुना होगा ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, तो उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो हम आज यूपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. ओके, सम ऑफ यू आर फ्रॉम 12th MB. ओके, BSc. ओके ओके, 9th क्लास 9. ओके, ठीक है. सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी, उसकी एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है. ये आपको पता है. ठीक है. और सर ने भी पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया है. तो उसके जो 3 स्टेजेस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट. ठीक है. उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो प्री है, उसको हम प्री बोलते हैं. तो वो क्या होती है, वो क्वालिफाइंग है. ठीक है. मतलब उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके जो ओवरऑल आपको लास्ट में जाकर रैंकिंग होती है मार्क्स के आधार पे, बेस पे, उस पे आपको वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. ठीक है. So that means the mains examination and the personality test, that is interview, are the most important aspects of the UPSC examination. Okay. So you have to think, or we have to study in this way. Okay. We have to consider this fact that the preliminary examination is only of qualification, or it is just for the qualification. Okay. So जब भी हम यूपीएससी का स्टडी करते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें. ठीक है. तो बेसिकली ये सभी के मन में क्वेश्चन रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें. तो सबसे पहले, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रीलिम का पहले एग्जाम होती है, बाद में मेंस होती है. तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले हम प्री का स्टार्ट करें और उसके बाद मेंस का, फिर इंटरव्यू का. लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता. जनरली हमको क्या करना पड़ता है कि मेंस का जो सिलेबस है वो पहले स्टार्ट करना होता है. ठीक है. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या है, सीसैट, दो पेपर होते हैं उसमें. इट इंक्लूड सीसैट 1, दैट इज जीएस, एंड सेकंड वन इज सीसैट 2. सीसैट का क्या मतलब होता है, इट मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके. तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें फर्स्ट पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का पेपर है. और जो दूसरा पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का है. ठीक है. और इसमें भी जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है. ठीक है. मतलब प्री के जो आपका स्कोर होगा, आपको जो मेंस के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, वो सिर्फ प्री के जो मार्क्स है उसमें सिर्फ आपको सीसैट 1 का जो पेपर है उसी के मार्क्स पर आपका मेरिट लगेगा. ठीक है. द पेपर 2 इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर. यू हैव टू गेट ओनली 33% मार्क्स इन दैट पेपर. ओके. तो सीसैट पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस है, तो हम ये देखते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. सो सीसैट 1, दैट इज जीएस, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स, जिसको हम प्रीलिम बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स है यूपीएससी के, ठीक है, उसका जनरल स्टडीज उसको बोलते हैं जीएस का. ठीक है. मतलब उन सब्जेक्ट्स का सारे हमें जनरल स्टडीज करना होता है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो उसका सिलेबस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड वन इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. The third one is Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Indian polity, governance, then economic and social development, general issues of environment, ecology, and last one is general science. So let us try to decode this syllabus. Okay. तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. तो पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है
कि यूपीएससी जब हम पास करते हैं तो हमें यूपीएससी कौन कौन से पोस्ट के लिए होती है आपको मालूम है, ठीक है। आईएएस, आईपीएस, देन आईएफएस, राइट। सो हमको ये सोचना है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के हमें एक आईपीएस को क्या फायदा है, ठीक है। हिस्ट्री जान के जो आईपीएस का वर्क रहता है उससे रिलेटेड हिस्ट्री का क्या मीनिंग है या फिर क्या उसका संबंध है। तो वैसे ही इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने क्यों है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का ये समझ में जाते हैं पैटर्न कि एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं और उनको आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, तो हमें स्टडी करने में थोड़ा सा इजी जाता है, ठीक है। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई अधिकारी या फिर कोई ऑफिसर होता है तो वो जो भी काम करता है उसके डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ये सारा उसे उसके हर डिसीजन में उसका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा या फिर इसका एस्पेक्ट उसके वर्क के रिलेटेड उसको हमेशा देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी ने सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया है कि जो भी ऑफिसर होगा उसके डिसीजन मेकिंग में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ये सोच पाए या फिर वो ये उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो भी डिसीजन लेने वाला है व्हाट विल बी इट्स इकोनॉमिकल, इट्स सोशल, इट्स पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है और इसी अप्रोच के साथ हमको इस एग्जाम को फेस करना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जब भी यूपीएससी का आप नाम सुनते हैं तो आपको किसी ने बताया होगा कि करंट अफेयर है वो काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं और उसके बगैर आप यूपीएससी क्रैक कर नहीं सकते, ठीक है। आप योगेश सर, यूपीएससी में योगेश सर, करंट योगेश सर, तुमचा आवाज आवाज कट होतोय सर. मैम योगेश सर, तुमचा आवाज कट होतोय. हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? सर, नाउ यू आर ऑडिबल. प्लीज चेक द चॅट बॉक्स. आवाज कट होत होता तुमचा बराच वेळ. हेलो, ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ. Yes, you are audible. Okay, sir. Please continue. Okay, am I clearly audible? Please let me know. Everybody, please let me know in chat box. Am I clearly audible? Okay. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी के सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि करंट इवेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हाउ, because every question or the most of the question that UPSC designs or asks, which are directly or indirectly related to the issues, the current events or the current affairs are very much important. Okay, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री में हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, ठीक है, फ्रॉम दी हड़प्पन सिविलाइजेशन टू टुडेज डेट, ओके। तो ये पूरी हिस्ट्री आती है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद का जो पीरियड है, ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके। तो हमने अब हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने बताया। तो अब ये तीसरा पॉइंट है सिलेबस में, वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी हमने ज्योग्राफी पढ़ी है हमारे 10th तक, हमारे 11th 12th में, सो मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी का पार्ट उसी में से आता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि ज्योग्राफी के और रिलेटेड भी जो भी करंट के रिलेटेड जो इवेंट चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्री के लिए अगर इंडोनेशिया में कोई रिसेंटली अगर कोई वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ है, तो यूपीएससी मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में आपको वोल्केनो के बारे में क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर लास्ट ईयर केरला में जो फ्लड्स आए थे, तो यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगी कि कौन सी नदी है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और वो उसका कैचमेंट एरिया कैसा है, जो केरला में जो नदी की वजह से फ्लड आए, ठीक है। तो ऐसे ही यूपीएससी क्या करती है, आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से आपको आपके स्टैटिक जो पोर्शन है उसमें से जो करंट में चल रहा है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा कि क्या है, देन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, देन थर्ड वन इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ओके। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या आता है और उसके प्री में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक के आर्टिकल्स तक, अमेंडमेंट्स तक, जो इम्पोर्टेंट जो कोर्ट्स के जो जजमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, पॉलिटी के रिलेटेड, ठीक है, वो सब इस पार्ट में आता है। और गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस में क्या मतलब, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका गवर्नेंस किस प्रकार से चलता है, वो कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए हर साल लाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज की, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज है, तो वो यहाँ पे इस पार्ट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी करंट अफेयर्स क्या मायने रखते हैं, तो यहाँ पे भी 1 से 1.5 साल के बीच, पिछले 1 से 1.5 साल, मतलब आज अगर प्रीलिम हो रही है तो आज से 1 साल पहले या फिर 1.5 साल, इसमें जो इंसिडेंसेस हुए हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर हमको पढ़ने हैं पॉलिटी के रिलेटेड, ठीक है, तो मतलब आपको 10 साल पीछे के सब्जेक्ट्स भी या फिर टॉपिक्स भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ पिछले 1 साल में क्या हुआ है या फिर 1.5 साल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पॉलिटी के रिलेटेड, गवर्नेंस के रिलेटेड, वही हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि हमें ये किस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, उसके बारे में इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, सोर्सेस कौन से हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो इस पार्ट में क्या आता है, इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमी यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे पुअर्टी के रिलेटेड इश्यूज है, जो हमारी वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो ये सब हमको इस पार्ट में पढ़ना होता है। इसमें भी जो स्टैटिक पार्ट है वो तो हमको पढ़ना ही होता है,
जैसे जीडीपी क्या होती है, स्टैटिक पार्ट का, स्टैटिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। स्टैटिक मीन्स व्हाट, स्टैटिक विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, वो हमेशा वही रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो अगर 10 साल के बाद भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज जीडीपी, तो उसकी डेफिनेशन वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा आज की इंडिया की जीडीपी और 10 साल के बाद इंडिया की क्या जीडीपी है, तो देयर विल बी ए डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है कि स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यूपीएससी क्या करती है, यहाँ पे भी जो डायनेमिक रिलेटेड पार्ट है, मतलब जो करंट से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे ज्यादा उस पर इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए डायनेमिक पार्ट को समझने के लिए आपको स्टैटिक समझना ही पड़ता है, ठीक है। इस साल की जीडीपी क्या है, उसकी ग्रोथ कैसे रही, और वो अभी 23% से श्रिंक हो गई है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था। तो यूपीएससी उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जीडीपी क्या है ये समझना होता है, एंड दैट इज स्टैटिक पार्ट, ठीक है। सो स्टैटिक एंड डायनेमिक ये दो ही पार्ट हमको समझने होते हैं। Now next one is general issues on environment and ecology, biodiversity, climate change that do not require any subject specialization. Okay, so what we are going to study in this topic? So environment and ecology, जो भी environment related topics है, the various environment related topics like pollution, climate change, biodiversity, right? तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स है उनके बारे में हमको सीखना होता है, ठीक है। इसमें भी जो स्टैटिक और डायनामिक दोनों हमको सीखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक मीन्स व्हाट, हमको ये सीखना पड़ता है कि व्हाट इज पोल्यूशन, राइट, एंड व्हाट इज डायनामिक, कि रिसेंटली अगर कोई न्यूज में आया है कि दिल्ली में इस साल रिकॉर्ड ब्रेक पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, तो ये रहा डायनेमिक पार्ट। तो स्टैटिक और डायनेमिक ये दोनों हमको साथ लेकर चलने होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज जनरल साइंस। जनरल साइंस मीन्स व्हाट, जो हमारा साइंस है, जो हम पढ़ते हैं फिफ्थ से लेकर जो 11th तक का जो हमारा साइंस है, जो हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, वो साइंस, ठीक है। और उसमें भी कोई हमें न्यूटन या फिर आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें यूपीएससी के रिलेटेड ही सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमको उसमें कोई मास्टरी या फिर पीएचडी करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। हमको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स में हमको, कुछ टॉपिक्स में हमको डिटेल में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप सिलेबस को रिवाइज करोगे, क्वेश्चन पेपर आप देखना चालू करोगे, तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट सोर्स वी कैन स्टडी अबाउट द प्रीलिम्स टॉपिक्स, ओके। तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इज मस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स नॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? उसके लिए पढ़ना चाहिए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। बाकी के क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? क्योंकि बाकी के जो न्यूज़पेपर है वो जो पॉलिटिकल या फिर बॉलीवुड वगैरह का जो अननेसेसरी मटेरियल, मसाला मटेरियल है, उसको ज्यादा कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस है वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और उनके जो आर्टिकल रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, और उससे हमको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। वेरियस जो आर्टिकल बड़े बड़े लेखक रहते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं, तो उससे हमको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स रहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, आई होप यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, योजना मैगजीन, जो गवर्नमेंट की एक मैगजीन है, जो गवर्नमेंट हर महीने पे पब्लिश करती है। उसके जो पॉलिसीज है उसमें डिटेल में उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में या फिर पॉलिसीज के बारे में डिटेल में लिखा होता है। उसमें आपको बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट की वेरियस वेबसाइट्स है उनसे भी हमें
करंट अफेयर्स के बहुत सारा मटेरियल हमको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, तो हिस्ट्री के पहले तो 3 पार्ट है, उसके लिए क्या पढ़ना है हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये हमको समझना है कि हिस्ट्री में कौन से पार्ट होते हैं। हिस्ट्री में पहले तो 3 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड वन इज मेडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंड out of 3 the modern history is very important for your prelims. Okay, so modern history मतलब क्या, modern history मतलब 1757 से लेकर जो 1947 है, ठीक है, वहां तक। ठीक है, मतलब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वहां से लेकर इंडिया को जो आज़ादी मिली इन 1947, वो जो पीरियड है उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, और उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो पार्ट है जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बोला, उसमें क्या आता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो अर्ली सिविलाइजेशन इंडिया में थी उसके बारे में है, तो उससे। और जो मेडिवल है मतलब जो शिवाजी महाराज का जो पीरियड है, या फिर 700 से लेकर जो 1757 का जो बीच वाला पीरियड है, मुगल पीरियड वगैरह वगैरह, वो मेडिवल में आता है। तो उससे प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, ज़्यादा फोकस रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो बुक है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और वही सबसे अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम पूरी बुक लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ हम ओवरऑल जानते हैं कि कौन कौन से बुक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, देन मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे जो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है 5th से लेकर 11th 12th तक, वो हमको पढ़नी होती है। ठीक है, सो और I would like to tell you that in for every subject in UPSC, you have to, if you want to prepare from basics, you have to start with the NCERTs. Okay, you have no other option. आपको NCERT से ही स्टार्ट करना होगा। अगर आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में या फिर इसका आपने अभी अभी स्टडी करना चालू किया है और आपका कोई कुछ भी स्टडी नहीं है, तो आप बेस्ट है कि आप NCERT से स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी जो बेसिक्स बुक है वो आप पढ़ना चालू करो, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आता है, वेरियस जो टर्मिनोलॉजीज है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आते हैं, और उसके बाद न्यूज़पेपर भी आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए और हमने न्यूज़पेपर उठाया, द हिंदू पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। और ऐसा होता है क्योंकि अगर कुछ आर्टिकल इकोनॉमी के रिलेटेड आया है लेकिन आपको उसमें से कुछ भी मालूम नहीं है, फॉर एग्जांपल जो रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स है, एलपीजी रिफॉर्म्स है, जीडीपी है, जीएसपी है, ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में ये आर्टिकल है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको मालूम नहीं है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एनसीईआरटीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में हिस्ट्री के लिए मेडिवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, और मॉडर्न के लिए भी एनसीईआरटी, उसमें से एनसीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में हमको जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री के लिए बुक है वो हमको पढ़ना होता है। ठीक है, ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अब क्या पढ़े, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, फिर से एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जीसी लियोंग नाम के ऑथर का एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सर विच पब्लिकेशन। ओके, सो we will provide you the detailed list of various books and authors. Okay, आपको ये लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे कि कौन से बुक्स है और कौन से पब्लिकेशन के हैं, वो सारी सब्जेक्ट वाइज आपको बुक लिस्ट आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, तो पहले तो हमको ये पढ़ना है एनसीईआरटी। वी आर गोइंग टू वी विल यू हैव टू study first NCERTs. Okay, after completion of NCERTs you can start with the GC Leong, the fundamentals of physical geography. Okay, तो ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट्स आते हैं। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज,
Same like that, geography is divided into 3 categories. The first one is physical, social and economic geography. तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एक बहुत ही अच्छा बुक है. सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी 70 to 80% हमारी जो एनसीईआरटी से उससे कवर हो जाती है. और उसके बाद में भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन एक बुक है, बहुत ही बड़ा बुक है. तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी, सिलेक्टिव टॉपिक्स भी हम इसके लिए कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. सो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ने के लिए हमको कौन से रिसोर्सेज देखने हैं. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इज obviously the NCERTs. Okay, and after understanding the NCERTs you can go with the M Lakshmikant. ठीक है, Indian Polity by M Lakshmikant. It is this book is considered as the Bible for the Indian Polity. Okay, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और एम लक्ष्मीकांत की ये जो इंडियन पॉलिटी बुक है उसमें प्री का 80 to 90% का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है. ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से और डिटेल में वहां पे लिखा गया है. लेकिन आप पहले ही दिन में अगर एम लक्ष्मीकांत खोल के बैठ जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट एनसीईआरटीज, राइट. ठीक है, और उसके बाद में हमको क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है. तो बेसिकली इकोनॉमी इज वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट हियर. ओके, तो यहाँ पे जो स्टैटिक का जो पोर्शन है वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते प्रीलिम्स के लिए भी. ठीक है, तो आपको यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत ही हार्डली और रेयरली को यूपीएससी पूछती है स्टैटिक से कि जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी. ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. जो भी स्टैटिक का जो पार्ट है उससे डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज है, जो भी डायनेमिक पार्ट है उससे पूछे जाते हैं. लेकिन जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक पार्ट ऑफ द सिलेबस फर्स्ट यू मस्ट नो द स्टैटिक पोर्शन. और इसीलिए कहाँ से कवर हो जाता है, हमारी एनसीईआरटी से. ठीक है, और जो डायनेमिक पार्ट है इकोनॉमी का वो हम कहाँ से कवर हो जाता है, हमारे न्यूज़पेपर से. ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर में हमारी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में आता रहता है. ठीक है, गवर्नमेंट की मैगजीन्स में, तो हमको वो देखना पड़ता है. उसमें पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जो वेरियस जो हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, नई नई स्कीम्स निकालती है, तो वो किसी बुक में आपके स्टैंडर्ड बुक में वो नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है. Now general issues on environment and ecology and biodiversity. Same like that, you have to go through NCERTs first, and the next one is Shankar IAS. The Shankar IAS publication का environment के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है. उससे बहुत ही डिटेल में हमारा environment and ecology का सब्जेक्ट है वो कवर हो जाता है. ठीक है. Now the next one is general science. जनरल साइंस के लिए क्या पढ़ना है, सबसे बेस्ट है जनरल साइंस के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है स्टेट पब्लिकेशन के या फिर एनसीईआरटीज के, वो हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, और उसके अलावा रवि अग्रवाल सर का भी एक बुक है. ठीक है, वो भी आप बाद में रेफर कर सकते हैं. ठीक है, और ये पार्ट के लिए भी जनरल साइंस के लिए भी आपको अवेयर रहना पड़ता है जो करंट अफेयर है उसके लिए उसके साथ. ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आवर इसरो हैज लॉन्च आवर चंद्रयान मिशन, राइट, चंद्रयान 2 मिशन. ओके, तो चंद्रयान 2 के बारे में आपको जो हमारे साइंस के बुक है उसमें नहीं होगा. ठीक है, उसमें वो टॉपिक नहीं है. ठीक है, लेकिन स्पेस के रिलेटेड, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स हमारे हैं. ठीक है, वो हमको एज अ बेस हमको वो सब पढ़ना है. और उसके बाद में जो करंट अफेयर्स के इश्यूज है उनको भी हमको पढ़ना होता है. ठीक है,
So this is all about the GS1, the syllabus of GS1. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको इसके नोट्स निकालने हैं क्या. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या हमको नोट्स निकालने की जरूरत है क्या. सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इट कैन यू कैन मतलब कोई निकालता है, कोई नहीं निकालता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नोट्स निकालते हो, if you make notes, it will be very easy for you to revise, and then you can easily understand the what you have studied previously. Okay, so नोट्स कैसे करने हैं प्रीलिम्स के लिए. तो आप जब पहले बैठ जाओगे पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से लेकर, सो डोंट ट्राई टू मेक नोट्स एट वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ. जब आप नोट्स आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है, 8 से लेकर 11th की, तो आप सिर्फ पहले रीडिंग में आप नोट्स करना आप नोट्स निकालना मत स्टार्ट करो. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू रीड. यू जस्ट हैव टू रीड. आपको फर्स्ट सिर्फ रीड करना है, और फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको 30% समझ में आएगा, 40% समझ में आएगा. आप उसके बाद आप फिर से रीड करोगे तो आपको बाद में और ज़्यादा समझ में आएगा. तो आप जब फर्स्ट रीड करते हो, फर्स्ट रीडिंग करते हो एनसीईआरटी की, तो आपको क्या करना है कि आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है, इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है, उनको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है, और पहली बार में हम जब स्टडी करते हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें हमको बुक में से पढ़ के भी हमको समझ में नहीं आती. तो हमको क्या करना है, गूगल का सहारा लेना है. अगर किसी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में कोई लाइन है और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको वहाँ पढ़ के भी डिटेल में नहीं बताई गई है, तो आप उसको गूगल पे सर्च करते हैं. दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी फ्रॉम वेरी बेसिक्स फॉर द प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी. ओके, सो इससे आपको क्या होगा, बेसिक आपका धीरे धीरे कवर होता जाएगा. और जब आप सेकंड और थर्ड रीडिंग करते हो तब आप नोट्स मेक करना चालू करो. ठीक है, और वो भी सिलेबस सामने रख के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सामने रख के आपको नोट्स निकालने हैं. ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूपीएससी आस्किंग. ओके, और उसी के हिसाब से आप पढ़ना चालू करोगे और उसी के हिसाब से आप नोट्स मेकिंग चालू करोगे. ठीक है, ओके, तो ये हो गया GS1 पेपर का. GS2 में क्या है, GS2 में है CSAT 2 80 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर है जैसे मैंने पहले बताया, और इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज क्वालिफाइंग पेपर, बट यू कैनॉट इग्नोर दिस, बट यू कैनॉट कंप्लीटली इग्नोर दिस. ओके, इसमें क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, राइट, जनरल मेंटल एबिलिटी. आई थिंक सर हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू अबाउट दिस, राइट. तो यहाँ पे क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये सारे यहाँ पे ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेंस. ओके, नाउ ऐसा कंसिडर कीजिए कि आपने अभी प्री क्रैक कर ली है और आपको अभी मेंस का स्टडी करना है. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी हम यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम पहले मेंस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और यूपीएससी के बारे में बहुत ही एक मशहूर एक ऐसा कहावत है या फिर एक ऐसी लाइन है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस. ओके, और ये कुछ हद तक, ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि मेंस जो होती है वो 1750 मार्क्स की होती है. ठीक है, 1750 मार्क्स की आपकी मेंस एग्जामिनेशन होती है, जो बहुत पूरी की पूरी रिटर्न होती है. ठीक है, आई होप यू हैव अवेयर अबाउट दिस. ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्वालिफाइंग पेपर से, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पेपर से उसका जिसके मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं, उसमें क्या है, पेपर 1, देन पेपर 2 to 5 एंड पेपर 6 and 7। ठीक है, पेपर 1 क्या है, एसए है। ठीक है, तो एसए में क्या है, 250 मार्क्स का एसए का पेपर होता है। और एसए के पेपर में आपको क्या होता है कि 2 एसए लिखने होते हैं। ठीक है, 1000 1200 1000 to 1200 के वर्ड लिमिट होता है उसका। ठीक है, और 2 आपको टॉपिक्स चूज करके उस पर आपको एसए लिखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेपर 2, 3, 4 एंड 5 वो है हमारे जीएस के 4 पेपर है। ठीक है, जीएस का मतलब क्या, जीएस 1, 2, 3, 4। तो उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वगैरह, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और पेपर 6 और 7 क्या है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं और आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। ठीक है, लगभग 28 सब्जेक्ट्स है ऑप्शनल्स के लिए, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू decode the syllabus of मेंस। ओके, जीएस पेपर 1। ठीक है, तो पहला पेपर कौन सा होगा जीएस में, हमने देखा कि एसए। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इन 4 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, 4 जो पेपर है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, उसके बारे में बात करते हैं। So what we are going to discuss here, we are going to discuss about this syllabus, how to prepare for the mains, how to prepare for the syllabus, how to approach for the individual subject, ये हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का है, 3 हर्स का 3 घंटे का आपको उसमें टाइम होता है, उसमें आपको 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कवर करना पड़ता है। ठीक है, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 12 से लेकर 13 15 तक की जो मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होती है। ठीक है, और जो वर्ड लिमिट होता है वो 150 से लेकर 200 वर्ड के बीच में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। मतलब जो A4 साइज का पेपर है वो एक साइड का पूरा और लगभग दूसरी साइड का आधा। ठीक है, मतलब एक 1.5 पेज आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। ओके, सो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 का ये डिटेल सिलेबस यहाँ पे है, तो उसमें क्या क्या आता है हम देखेंगे। ठीक है, और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हमारा कितना कवर होता है वो देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो सिलेबस है उसका एक्सप्लेनेशन और डिकोड करने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में क्या आता है, इसमें आता है मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, सोशल इश्यूज। ओके, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज। हिस्ट्री में क्या क्या आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री के 3 एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट तो है, फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड वन इज मेडिवल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ यहाँ पे जो हमारा एक एडिशनल जो दिया गया है मेंस के लिए, वो क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, आपको मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। और उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है इंडिया का, उसके बारे में भी हमको जीएस पेपर 1 के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, उसमें क्या आता है, salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient and modern times। ठीक है, देन एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, जो हमारे कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है। ठीक है, और जो हमारे वेरियस आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, जो हमारा इंडिया का जो वेरियस रिच आर्किटेक्चर और लिटरेचर जो हमारा है, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, और उसमें हमको ऋग्वेद से लेकर जो हमारे मंदिर बनाने की जो शैली है, द्रविडियन शैली और गांधार शैली, उस तक हमको सब पढ़ना होता है। ठीक है,
और ये जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सिलेबस का, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड आएगा कि जब तक आप हम ये समझ नहीं सकते कि क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उसका स्टडी भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन और व्हाट यूपीएससी वांट्स expects from us from that question. Okay, now ये भी जो पार्ट है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेचर, इसके लिए नितिन सिंघानिया जो ऑथर है, उनका एक बहुत ही फेमस बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए। उससे हम बहुत सा सिलेबस है उसका ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है मेंस के लिए, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से हमारा बेस कवर हो जाता है, और उसके बाद जो 11th-12th की जो एनसीईआरटीज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो 1757 से लेकर 1947 तक का जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या आता है, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कैसे इंडिया में उनका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया, फिर कैसे इंडियंस ने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कैसे हुई, वो सारा जो पार्ट है वो बहुत ही विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और ये जीएस पेपर 1 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और ये पार्ट हम कहाँ से कवर करेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा हमको ये पार्ट कवर करने के लिए? तो फर्स्ट we have to study the basic NCERTs, right? और उसके बाद हमको जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम का जो बुक है वो हमको पढ़ना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या पढ़ना है? अभी वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो जितना भी पढ़ेंगे, जितना पीएचडी करेंगे उतना ही कम है। मतलब जितना आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानने लगोगे, हिस्ट्री के बारे में हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो वो भी सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है। जब भी हम यूपीएससी का स्टडी करते हैं तब हमें वी हैव टू टेक कंसिडर द फैक्ट दैट we don't get flown away with the topic or with the subject. Okay, हमको वही पढ़ना है जो दिया गया है, हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम। Am I clearly audible? मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, सो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड दी इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसमें क्या हमको क्या पढ़ना है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमको पढ़ना है जो इवेंट्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो 18th सेंचुरी से लेकर आगे जो इवेंट हुए हैं वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने की बात है, जो हमको 18th सेंचुरी के पहले के जो इवेंट है उसके बारे में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देखकर ये लगा होगा कि अभी रोमन इंपायर भी पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमन इंपायर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं, हमें यहाँ क्लियरली यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री विल इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से आगे
और 18वीं सदी में जो इवेंट्स हुए हैं वही हमको पढ़ने हैं यूपीएससी की GS1 पेपर के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जब आप पढ़ने लगोगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब GS1 का पार्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये GS1 में इतने टॉपिक है, ये हम 250 मार्क्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, ये तीनों टॉपिक, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलके 250 मार्क्स तक हमें क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, उसमें से कुछ 75 to 100 मार्क्स का जो हिस्ट्री आएगा, देन 100 मार्क्स का मे बी ज्योग्राफी आएगा, और सोशल इश्यूज 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, ये कोई क्लियरली 100% यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी हमको यहाँ पे पढ़नी है। उसमें क्या पढ़ना है, सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के सैलेंट फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो जब हम पढ़ने लगेंगे, हम जब स्टडी करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटीज। ठीक है, आप एनसीईआरटीज पढ़ना चालू करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सोशल साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें भी आते हैं, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, वो सारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ डायनामिक पार्ट। तो ये भी हमारा जब हम हमारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेरियस आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें से ये हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, the next one is factor responsible for the location of primary, secondary, tertiary sectors industries in various parts of the world including India। तो ये भी एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो you might not understand the meaning of the primary, secondary and tertiary sector as of now। okay, तो यहाँ पे सिलेबस में जो भी यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दी गई है शायद ये आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन डू नॉट वरी। ठीक है, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको ये समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे और सिलेबस को समझ के पढ़ना चालू करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, now the next one is important geographical phenomena। तो अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स, ये भी हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, geographical features and their location, changes in critical geographical flora and fauna and effects of water bodies and ice caps and features including such changes। ओके, तो इसमें भी हमारी फ्लोरा फोना क्या है, हमारे जो वेरियस फॉरेस्ट है उसमें कैसी बायोडाइवर्सिटी है, उनके क्या इफेक्ट्स है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये सब हमको इस पार्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप अगर ये समझ के चल रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँगा और मैं सारे बुक्स रिलेटेड स्टैटिक की बुक पढ़ लूँगा और मैं मेंस के आंसर राइट करने के काबिल हो जाऊँगा, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमको क्या समझना पड़ता है कि स्टैटिक प्लस डायनामिक। ठीक है, और डायनेमिक पार्ट में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने स्टैटिक में पढ़ लिया कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी है। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से जंगल है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। ठीक है, कौन से जो हमारे टाइगर्स कहाँ पे रहते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन यूपीएससी आपको ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी, राइट डाउन दी वेरियस नेशनल पार्क, वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी। ठीक है, आपको यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगी, यूपीएससी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी कि
पिछले कुछ सालों से टाइगर की संख्या इंडिया में घटती जा रही है, तो इसके लिए ह्यूमन इंक्रोचमेंट और क्लाइमेट का कितना असर हो रहा है, इल्यूसिडेट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उसका रहता है। तो इसमें क्या आता है, आपको दो चीजें समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि टाइगर जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये पार्ट आपका कहाँ से कवर हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी कवर्ड फ्रॉम स्टैटिक, राइट। आपके बुक्स में तो ये होगा कि इंडिया में इतने नेशनल पार्क है और इतने टाइगर रिजर्व है, लेकिन ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से रिसेंटली या फिर जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो पोल्यूशन बढ़ा है, जो क्लाइमेट हुआ है, उससे हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन पे क्या असर हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा, ये न्यूज़पेपर में कवर होता है, वेरियस जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर के, मैगजीन, वो हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आती है, ठीक है। तो करते हैं, हमको यही अप्रोच लेके हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी से मैं जो भी पढ़ूंगा वो डायरेक्टली इसके मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन जो पूछने वाले हैं, जो डायनेमिक पार्ट पूछने वाले हैं, उसको समझने के लिए जो एनसीईआरटी का जो स्टैटिक पार्ट वो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जो यूपीएससी में मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक तो खास एक सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे स्टेट जो पीएससी, हमारे एमपीएससी है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, उसमें और यूपीएससी में क्या फर्क है, ठीक है। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि जो हमारे स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट पीएससी जो होते हैं, ठीक है, जैसे जीपीएससी हो गया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन है, या फिर यूपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, तो उसमें और हमारे यूपीएससी में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे पीएससी के जो एग्जामिनेशन है वो हमको पूछते हैं वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की टाइगर रिजर्व कितने हैं, कितने टाइगर की संख्या है इंडिया में, कहाँ पे वर्ल्ड में, वहाँ पे कौन कौन कहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, कौन सी प्रजाति के टाइगर्स मिलते हैं, ये क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा एमपीएससी में, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती, यूपीएससी पूछती है वाई, ठीक है। इंडिया में जो टाइगर्स है उनकी संख्या क्यों कम होती जा रही है, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यूपीएससी हमेशा डायनेमिकली और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है, और यही जो खासियत है यूपीएससी की, वो यूपीएससी को बाकी है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी विल नेवर आस्क यू व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव, यूपीएससी विल आस्क यू व्हाट नॉलेज you have, ठीक है। but for knowledge, to gain knowledge you must have information, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, what I have tried to say here, कि यूपीएससी में पूछा जाता है कि नॉलेज कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप क्रिटिकली कैसे एनालाइज करते हो, ठीक है, उसके कॉजेस एंड इफेक्ट को आप किस तरह से देखते हो, और उसकी रेमेडीज के बारे में आप किस प्रकार से देखते हो, ये पूछती है यूपीएससी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो टॉपिक है उसका जो स्टैटिक और बेसिक पार्ट है वो समझने की जरूरत होती है, और वही हम जो बेसिक एनसीईआरटी okay, the last topic is social issues, salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women empowerment, population and associated issues, then poverty, developmental issues and urbanization, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो सोशल इश्यूज में आते हैं। उसमें क्या है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसमें क्या आता है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है जीएस 1 का, ये प्रॉपरली डायनेमिक पार्ट है,
ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये जो जो 4-5 पॉइंट्स है, ये क्या है, ये बहुत ही डायनामिक पार्ट है और इसको आपको उसी वही चीजें ध्यान में रख के आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। ओके, तो लेट मी टेल यू एन अनदर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन का एक पॉइंट है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के पॉइंट को लेकर यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन को लेके, ठीक है। तो अगर एमपीएससी है या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन है, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय अर्बनाइजेशन, ठीक है, व्हाट इंक्लूड्स अर्बनाइजेशन, वो आपको ये पूछेगी। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगी, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, मतलब भारत के वृद्ध जनसमूह पर जो अर्बनाइजेशन है उसका क्या प्रभाव हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसी भी बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। यू कैन गेट व्हाट इज मीन बाय अर्बनाइजेशन, ये सब आपको बुक में आपको समझ में आएगा, अर्बनाइजेशन क्या होता है ये सब आपको पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द एजेड पॉपुलेशन, ये आपको बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ता है। वेरियस सोर्सेज को हम जब एनालाइज करते हैं, करंट इवेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है। So this is all about today's lecture. So I hope you understand what we have discussed here. Okay, so हमने आज कवर किया मेंस का जो जीएस पेपर 1 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जीएस 2, 3 या 4 ये सारे जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you for having me here. Goodbye everybody. Thank you. So you can leave this lecture.